بچوں کو صحت کا سایہ فراہم کر رہا ہے۔ ایک قلم کے ذریعے قوم کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے والے سینئر صحافی، کالم نگار اور دانشور منو بھائی کی شرکت سندس فاؤنڈیشن کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی، اور منو بھائی نے ایک باپ بن کر ان مریض بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ سن 2000 میں سندس فاؤنڈیشن کو میں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور خون کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کا علاج کرتے دیکھا، تو میں نے بقیہ زندگی ان معصوم جانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ہم بکھر کہیں جائیں نہ بھی دلوائی جا رہی ہے۔ تھیلیسیمیا کے ان مریضوں میں بھی گھوڑے نایاب ہو سکتے ہیں، آئیے اور ان کی سرپرستی کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ تو پھر آئیں اور اپنی زکوٰۃ و عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر ہمارے مشن کو کامیاب بنانے میں شامل۔ یہ علی ہے۔ علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر اس رمضان بچائیے کسی بچے کی جان۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ۔ السلام علیکم، آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ موضوع سیم ایز لائک بیفور پاکستان ہے، اور صرف پاکستان ہے، اور بہت دلچسپ خبریں ہیں۔ بائیڈن نے شہباز شریف کو خط لکھا، کال انہیں بھی نہیں کی۔ پہلی خبر تو یہ ہے۔ پھر پی ٹی آئی تو پھیل گئی، اس کو تو موقع مل گیا ہے، اور اب نیکسس سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، چیف جسٹس جو ہے نا خود نوٹو سو موٹو جو ہوتا ہے کہ وہ لیں، اور 5 جج سرونگ جج ہوں چیف جسٹس کے ساتھ، اور چیف جسٹس سربراہی کریں، اور وہ تحقیقات کریں ججز نے جو الزامات لگائے ہیں۔ اور حامد خان نے کہا کہ میں شہباز شریف پہ اور اعظم طالب وزیر قانون پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ یہ کروایا ہی شہباز شریف نے۔ اس پہ بات کریں گے کہ بہت سیریس مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسمبلی میں تحریک التوا ڈال دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ تحریک انصاف اٹھائے گی۔ پھر ساتھ میں لاہور پنجاب پولیس میں 200 سے زیادہ 234 اہلکار پولیس کے رپورٹ دی گئی ہے پولیس کی ڈپارٹمنٹ سے، یہ منشیات فروشوں سے ملے ہوئے ہیں۔ بھائی کیوں نہ ملے ہوئے ہوں، صرف اوپر والوں کو تو مال بنانے کا حق نہیں ہے نا، کہ جب قرآن اٹھا کے کہیں کہ رانا ثناء اللہ کی اس گاڑی میں ہم نے چرس پکڑی ہے، تو 21 کلو چرس یا ہرشی جو بھی تھی آئس جب نکال کے کسی پہ ڈالی جا سکتی ہے تو بیچی بھی جا سکتی ہے۔ جب ہر طرف سے کھیل ہو رہا ہے تو انہیں بھی حق پہنچتا ہے۔ ہم تو حمایت کریں گے ان کی بھائی، کہ جیسا دیس ویسا بیس۔ ایمانداری سوٹ نہیں کرتی اب لوگوں کو وہاں۔ ایک ٹیلی فون چور نے جو گفتگو کی موقع لگا تو میں وہ بھی سناؤں گا آپ کو۔ تو ساتھ میں آصفہ بھٹو بلا مقابلہ انپوش حلقہ 207 اندرون سندھ سے منتخب ہو گئی ہیں ضمنی انتخابات میں رکن قومی اسمبلی، اور انہوں نے کہا کہ میں وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن لوگوں کی خدمت کروں گی کہ جو کسی بھی پارٹی میں ہو۔ ساتھ میں
ایک بہت بڑا سروے آیا ہے گیلپ کا جو 44 ملکوں میں ہوا ہے کہ پاکستانیوں نے جمہوریت پہ عدم اعتماد کر دیا ہے. جتنے لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے اتنے ہی لوگوں نے حمایت کی اس کی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 38% نے عدم اعتماد کیا تو 38% نے کہا کہ نہیں صحیح ہے. تو اس سے بات کریں گے کہ جمہوریت کیوں پاکستان میں ڈکلائن کر رہی ہے. ایک پورا میں چھوٹا سا ایک ڈیٹا بھی شائع ہوا ہے تو وہ بھی بتا دوں گا آپ کو کہ کھیل کیا ہو رہا ہے. پھر یہ اس کی یہی ڈیٹیل ہے, یہی ساری اتنی سی کہانی ہے. اور ہاں, شہباز شریف صاحب برس پڑے ہیں سرکاری تقریبات میں, ان کے لیے ریڈ کارپیٹ کیوں بچھایا جا رہا ہے. جب ہر طرف سے تبرے پڑھنے شروع ہوئے تو تھوڑی سی شرم آ گئی. اگر میڈیا درست ہو, مسلسل بولتا رہے, کہتا رہے, ناراضگیاں لیتا رہے, برابر میں بیٹھنے کے شوق ختم ہو جائیں اور یہ ڈر ختم ہو جائے کہ اگر دوبارہ ہمیں بلائیں گے نہیں, اگر سب متحد ہو جائیں, جمہوریت پہ تو ہو جائیں نا, کہیں تو کسی ایک جگہ تو ہو جائیں, تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا. مگر دیر ہوتی جا رہی ہے اور سمجھ کسی کو نہیں آ رہی. تو پہلی تو کہ بائیڈن صاحب نے, پریزیڈنٹ بائیڈن ہمارے امریکن پریزیڈنٹ نے خط بھیجا ہے, نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی ڈیموکریسی کی گروہ کے لیے, آپ کے دوسرے معاملات کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, دہشت گردی کے خلاف ہم آپ کے پارٹنر ہیں. اور یہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا نا حکومت بنے ہوئے, میرے خیال میں نہیں 15 دن سے زیادہ ہو گیا ہے. بہت سے لوگ پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے کال کیا کہ بائیڈن نے جیسے عمران خان کی پوری کوشش کے باوجود امریکہ پہ ایسے الزام نہیں لگایا خان صاحب نے, جب تھک گئے کہ کال ناممکن ہو گئی کہ بائیڈن نے ایک موقع پہ جو یہاں کوششیں کر رہے تھے ان کہا کہ جی اگلے ہفتے کال ہو جائے گی اور پرومس دے دیا گیا ہے. میں کہا کال نہیں کی عمران خان کو, تو وہ کال انہیں بھی نہیں کی, بتا دیا کہ ابھی تم لوگ وہاں نہیں پہنچو کہ میں تمہیں کال کروں. بس ٹھیک ہے, خط لکھ دیا. وہ بھی کوئی جو معاملات ہیں, جو دہشت گردی پاکستان میں بڑھ رہی ہے, جو افغان طالبان کر رہے ہیں, تو ضرورت تو ہے تھوڑی بہت صحیح. مکمل ڈم کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ, مگر میں کہتا ہوں نہیں, مکمل ڈم نہیں کیا ہے. امریکن بہت سینسیٹیو ہیں مگر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو خط لکھ دیا. اب پہلے آتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ, اور خود نوٹس شو موٹیو ڈے حامد خان نے کہا کہ ہمیں پرائم منسٹر پہ اور اعظم تارڑ وزیر قانون پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, اور یہ سارے ججوں کا مشترکہ فیصلہ نہیں لگتا جو فل کورٹ تھی. یہ چیف جسٹس نے شبہ ہے کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا ہے, جو اگر ایسا ہے اور سب ججز نے فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے جس کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہوں گے اور وکلا نہیں مانیں گے. اور یہ پاکستانی ریاست پر, قانون کے اداروں پہ, انصاف کے اداروں پہ حملہ ہے. اور اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے تو ریاست نہیں بچے گی. تو بہتر ہے کہ وقت سے پہلے اس پر کنٹرول کر لیا جائے. اب یہ زور کیا ہے جو اسلام آباد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی آرمی چیف پر حملہ ہے, بدلہ لینے کی کہانی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس پر پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کھیل کہیں اور ہو رہا ہے, اس سے دانوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ کھیل کہیں اور ہو رہا ہے, لڑائی کہیں اور ہو رہی ہے, اور نیکسس جو ہے اپنے اپنے ہیں, اپنے اپنے گروپ ہیں, اور پریویل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. شہباز شریف نے نواز شریف کو تو پیچھے کر دیا, اب عاصم جہانگیر کا نمبر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عاصم منیر میں نام ہمیشہ غلط دیتا ہوں, کہ عاصم منیر اس سازش سے کیسے محفوظ رہتے ہیں. اور چیف جسٹس جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ فلم اپنے گلے نہیں باندھیں گے. اس میں جو پنڈورے باکس کھلنے ہیں, جو وٹنسز آنی ہیں, اور جو لڑائی جہاں جا کے کھڑی ہو گئی, کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ لڑائی بہت گہری ہوتی جا رہی ہے, اور میرا مشورہ انہیں یہ ہے کہ غور کریں. یہ ریڈ کارپیٹ پہ ایک برہمی سے کچھ نہیں ہوگا. جب جگہ جگہ ریڈ کارپیٹ اور میٹ پڑ رہے ہوں,
वीडियोस बन रहे हों और खुलेआम बन रहे हैं और फिर आसपा, मुझे आसपा पे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत सही बीवी ने मुझे कई बार बताया और मैं इस पर कई दफ़ा बता भी चुका हूँ कि बीवी बहुत आसपा की तारीफ करती थी, मेरी डायरी भी मेंटेन करती है, मेरा टेलीफोन भी सुनती है और मुझसे डिस्कशन भी करती है पॉलिटिक्स पर। बिलावल तो कहाँ से बीच में आ गया हमें नहीं मालूम, मगर ये भी सच है कि खातून की जो विल थी उसको अमेरिका में फ्रेंसिक मैंने करवाया था। FBI की एक 74 साल खातून से जो साबिक FBI ऑफिसर थी, फ्रेंसिक का काम करती मिनीसोटा से, और बहुत लंबे पैसे दिए थे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये विल झूठी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये पार्टियां, ये जमहूरियत इनमें है ही नहीं। लोगों में जो नफरत है, जो रिएक्शन है, वो टोटल ये है कि यही लोग आ जाते हैं कि एक चलता है जिसे भगा देते हैं इल्ज़ामात लगा के, सजाएं सुना के, फिर अचानक जो है वो दूध में धुल जाता है और एयरपोर्ट के ऊपर उसे लंदसी प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाते हैं और बता दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर है, मगर प्राइम मिनिस्टर तो बेचारा नहीं था, वो तो वहीं हार गया था। कि उसे फारिग करने का यही तरीका था। तो इनसे आप नफरत भी दिलवाते हैं, इन्हें कंटिन्यू भी करवाते हैं, तो जमहूरियत से लोग नफरत ही करेंगे ना, क्यों ना करें नफरत। और फिर इस नफरत का शिकार आप भी खुद हो गए कि सबके जहनों में यह आ गया है कि आप जिसे चाहते हैं ले आते हैं, जिसे चाहते हैं भगा देते हैं। जो आज इनकलाब की बातें कर रहे हैं उनके लोग ये भूल गए कि इन्हीं कंधों पर बैठ कर आए थे और हमेशा से यही होता रहा है और अब भी इन्हीं के कंधों पर बैठ कर आएंगे, क्योंकि गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। जंग लड़ते हैं स्क्रीन पर, अभी वो वक्त नहीं आया है और वो सलाहियत भी नहीं है हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि स्क्रीन से जंग लड़कर जीत ली जाए। दूर है अभी कन्वेंशनली जंग लड़ना पड़ेगी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बाहर निकले हैं, क्योंकि आप भी गलत हैं, एक गलत आदमी के पीछे खड़े हुए हैं और इन्हीं लोगों ने बनाया था जिनसे आप नफरत करने का, अपनी नफरत का इजहार करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, मुझे मरियम बीबी से, मुझे शहबाज जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जो सीट खाली की और एक दो और सीटों पर जो ज़िमनी इंतखाबात है उसमें उसके रिकमेंड करदा लोगों को नहीं लिया गया, मतलब खोटे लाइन लगा दिया ना, बस दे दी प्राइम मिनिस्ट्री, और जिन हालात में दी वो सबको पता है। मेरे मरियम बीबी से, शहबाज से या बिलावल से, मैं बीबी को बहुत पसंद करने वाले लोगों में से हूँ। बीबी ट्रू इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल समझता हूँ मैं उनको, और वो हमारा दिमाग थी। जालिमों ने बड़ा जुल्म किया, मगर ये अदा पसंद नहीं आई हमें। अगर यहाँ पर भी कई प्रेसिडेंट बाप बेटे गुजरे हैं, 3 मेरे ख्याल में, या जो रिसेंट हिस्ट्री में सीनियर बुश, जूनियर बुश, उनका एक बेटा जैब बुश, मगर दूसरे जैब बुश को जो बहुत अच्छा गवर्नर था फ्लोरिडा का, उसे प्रेसिडेंट नहीं बनवा सके। रूट्स से काम करना, मार्सिस से आना होता है। इन्हें कौंसल लड़वाते आप, इन्हें गलियों में लेकर जाते। आसफा ने क्या किया है कि कभी कभी VVIP तकरीर कि जैसे शौकत खानम के फंड रेजिंग में अलीमा खान को डिग्निटी बनाकर, ये 60 अरब की कहानी जब कभी खुलेगी ना खातून की, तो पता चलेगा कि इमरान खान की बहनें VVIP हैं और शौकत खानम के डिनर में VVIP का जो प्रोफेशनली मार्केटिंग है वो चेक कर लेगा, पता चल जाएगा। तो यही इनका असफ़ है जी तकरीर करने बिलावल की सपोर्ट के लिए। बिलावल तो पैदाइशी चेयरमैन थे कि जी बिल आ गई कि जनाब यही चेयरमैन होंगे, वो दूसरी बात प्रेसिडेंट बन गए। आप लोग भी सोचें, आप लोगों ने ये जो इतना मुँह किया, शोर शराबा, इनको मुतहद कर दिया, वो फिर लौट के आप मेहनतें आपने की, आप हो गए, सारे के सारे वही आ गए। जब तक हमारे वो इदारे जो खेल खेलते हैं बंद नहीं करेंगे और सियासी, देखें आखिरी क़ुव्वत वो ये है, अभी तक की मुनज़्ज़म क़ुव्वत, ठीक है अंदर जो भी हो रहा हो, मगर मुनज़्ज़म में बज़ाहिर वो चेक एंड बैलेंस कायम करवा के यहाँ जमहूरियत ला सकते हैं, जिससे आवाम नफरत करने लगी है। जमहूरियत का क्या कसूर है भाई? इसके नेवियन कंट्रीज़ में भी है, भारत में भी आ गई है, प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका में भी है, परफेक्ट
तो कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। मतलब ये जमहूरियत ने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर उस पर अमल न करें, ये जमहूरियत ने कहा है कि आप डब्बे छीन लें, लूट लें, RTR बिठा दें, पोलिंग एजेंटों को भगा दें और अपने डब्बे भर दें, और जो जीता हुआ है उसे 469 काट कर 14,000 कर दें, 40,069। तो ये तो जमहूरियत ने नहीं कहा है, इसमें जमहूरियत का कसूर नहीं है। आज के निज़ामों में सबसे बेहतरीन निज़ाम जमहूरियत का है, जो फ़र्द को आज़ादी देता है, राइट्स देता है, सिविक राइट, ह्यूमन राइट, सिटीज़न राइट्स, सारे राइट्स देता है ना। फ्रीडम राइट जो आपके हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर, नोट कर लें, यह है इस मुल्क में बहुत खराबियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं, बहुत शिकायतें मुझे, मगर आज भी यही मुल्क है जो इंसानी हुकूक की आज़ादियों के लिए लड़ रहा है। आप लाख इसराइल के हवाले से मुखालफत करें, इत्तेहादियों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता कि एक बात पे नाराज़ हो गए और दुश्मनियाँ पड़ गई, नहीं। पूरा मैंने कहा, एक दिन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दुनिया में नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करती हैं, कानून इंसाफ के तकाज़ों से खाली नहीं करती, उसे भी मद्देनज़र रखती हैं, मगर नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो बाइडन जो नेतन्याहू को देखना भी नहीं चाहते थे जंग से पहले, उन्हें मिलना पड़ा और अब फिर इनकार कर दिया ना, नहीं मिले। ऐसा ही है ना, मगर ये नहीं होता कि आपने भारत से जंग कर ली, भारत से लड़ाई है कश्मीर, तो आपने कारोबारी बंद कर दिया, क्या अंजाम निकला? भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको हुआ। तो जब तक ये मामलात आप लोग नहीं समझेंगे कि जनाब 69% औरतें हैं ज़्यादा जमहूरियत से नाराज़ हैं और 63% मर्द, तो मैंने सब कुछ लिख के रखा है, 66% लोग अवाम जो हैं वो मौजूदा हुक्मरानों से मुतमईन नहीं है, सिर्फ 22% जो मराठी याफ्ता हैं, जो इनके ट्रोलर हैं, जो इनसे रुकने असम्बली हैं, सेनेट में हैं। आप देखें सेनेट में सब अनअपोज आ गए। क्यों आ गए? डर की वजह से आपस में पैचअप कर लिया सबने कि एमी कोई बैलेट खुफिया होता है, कोई इधर उधर ना हो जाए, जैसे खास साहब के दौर में होते थे। उनका अपनी अपनी जिसके जितना हिस्सा बांट लो भाई। फैसल वाडा जैसे भी बीच में आ गए ना, MKM जैसी जमातें बीच में रखी, ये है आपकी जमहूरियत। ये जमहूरियत ने कहा है कि फैसल वाडा को लेकर आए, या जमहूरियत कहती है कि आप बूट के नीचे दबा के रखें, मारे पीटे हैं, और जिसे कहें ए अब तू नहीं बोलेगा, ए तू बोल सकता है, और देख तू मुझे छोड़ दे। ये जमहूरियत ने नहीं कहा है। आप जमहूरियत से क्यों नफरत करते हैं भाई? इसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। ये हुक्मरान जमहूरियत लेकर आई है, या पहले वाला जमहूरियत लेकर आई थी, उससे पहले वाला जमहूरियत लेकर आई थी, उनकी आगाज से लेकर अंजाम तक कहानी को गौर से तो देख लें। जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। उसे गाली मत दें, उसे बुरा मत कहें, उस पर शक का इजहार मत करें। आपने अपनी इसी सर्वे में अक्सरियती राय से कह दिया 45% ने कि इंतखाबात मशकूक हैं, इनकी शफाफियत पे आपको शुबा है। तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत की वजह से तो शक नहीं है ना। जो शकूक को शुबात की वजूहत है उनको बयान करें ना। जमहूरियत जहाँ जहाँ उसकी नाम्स को पूरा किया गया है, उसके उसूलों पर अमल किया गया, वो कामयाब है और वो ज़िंदगी में वहाँ के लोग समाज तरक्की कर रहा है। तो मैं तो आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और उनसे ये कहना चाहता हूँ वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। झूठे सर्वे करवाने से कुछ नहीं होगा। सुने इन बातों को गौर से कि जमहूरियत जिसे आप कहते हैं ना कि जमहूरियत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, और जमहूरियत पे सब तमाम इदारे में इत्तफाक करते हैं। ये किया है आपने कि लोग जमहूरियत से नफरत करने लगे क्योंकि शऊर नहीं है, आपने आने ही नहीं दिया। मुतारे पाकिस्तानी जब झूठा पढ़ाया जाए तो अंजाम यही होना था ना। बहुत कम वक्त रह गया है, अभी तो जजेस ने इल्ज़ाम लगाया, कल आप ही की सफ़र से कौन जाने, ये यू कहते हैं ना, हे यू नेवर नो, आप ही के दरमियान में से निकल कर खड़े हो जाए, फिर क्या करेंगे? गोली मार देंगे कितने को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 20 को। आपको तो अल्लाह ताला ने सुनहरी मौका दिया था कि आप फेयर इलेक्शन करवाते। आप इतने ताकतवर इदारा रखते हैं कि कोई इमरान खान जीतने के बाद आपको सेट नहीं कर सकता था, ये सब जानते हैं। नवाज शरीफ ने कोशिश की थी ना, क्या हुआ था अंजाम? पूरे इदारे में रिबेटल सब कुछ सामने आ गया था, रिवोल्ट हो गया था। तो इमरान खान नहीं कर सकते थे, खौफ बेमकसद था। और ये उनकी सच्चाई भी पता चल जाती है कि वो कितने इनकलाबी हैं, वो कितने
मुल्क से मुखलिस हैं, कितने ज़हीन सियासतदान हैं, कितने बाशऊर हैं, कितने डेमोक्रेटिक हैं, सब कुछ खुल के आ जाता सामने। रियासतें ऐसे ख़त्म नहीं होती किसी एक गलत के आ जाने से। अगर इदारे काम कर रहे हो, चेक एंड बैलेंस हो, जिसके लिए आपको असल काम करना चाहिए कि लोग आपसे अभी भी सभी डरते हैं ना, तो और आपकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आप चाहते तो चेक एंड बैलेंस कायम करवा के जमहूरियत को आप मौका देना चाहिए था कि जाए फ्री इलेक्शन कराएं, जो आता है। मगर ये पुलिस वाले मंशियात फरोशों से मिल गए, और सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ सुना सकता हूँ मैं। ये इसलिए कि आप सब आपस में लड़ रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी शित्र बेमुहार हो चुकी है, वो नोच नोच के लूट के खा रही है, बिल्कुल ऐसे कि जब कोई जहाज डूबने लगता है ना, जिसके हाथ जो लगता है वो लेके कूद जाता है। जब भगदड़ मचती है या किसी बाजार में अफरा तफरी हो, दुकानें लूट जाती हैं। ये दुकान लूट रही है और सिर्फ इसलिए लूट रही है कि सब दस्तों गिरवा है, और जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ रहना नहीं है, जो रियासती इदारों में पब्लिक डीलिंग के इदारे हैं, तो आप समझते हैं कि जमहूरियत से भी नफरत हो गई, आपसे भी नफरत हो गई, तो ये मुल्क चल सकता है? नहीं, ये मुल्क नहीं चलेगा। आपको सोचना है। और ये जो पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, जो जजों ने इल्ज़ाम लगाया, ये आपको घेर लिया गया है, आपको कमज़ोर करना है, और इसका अंजाम कहाँ तक जाएगा, ये क्या रुख इख्तियार करने वाला है। मैं कम अक्ल आदमी हूँ, बहुत ज़हीन, कोई इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ, मैं वो प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जाएगा। क्योस बढ़ रहा है, इकॉनमी जो पहले ही डूबी हुई है, अभी कोई और रेटिंग कहीं पर कम हुई है ना, किसी और लिस्ट में आपको बरकरार रखा गया है। लाके कि जनाब इकॉनमी सेटल हो रही है और बेहतर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। जब असद कैसर ये कहे KPK के वज़ीर आला से कि तुम वफाक की बात मानना बंद कर दो, वज़ीर आज़म से मिलना छोड़ दो, अब मफाहमत का नहीं मज़ाहमत का वक्त आ गया है, और लोग बाहर निकलें कि तुम्हारे कहने पे एक अफसर भी नहीं लगाया वफाक ने। अगर एक सूबा आपसे नाफरमानी कर रहा है, दूसरे सूबे में ऑलरेडी, और उस सूबे में पहले से गदर भी मचा हुआ है, रोज़ शहादतें हो रही हैं, दूसरा सूबा भी कत्ताल का मंजर पेश कर रहा है, मक्तल बना हुआ है, तो ये पाकिस्तान चलेगा? इससे इकॉनमी चलेगी? आखिर उदावाना वाली बात कि मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरा काम था बता देना और आप लोगों को समझाना कि जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। जमहूरियत ही वाहिद निज़ाम है इस दुनिया में जो आपको कौमों की बरादरी में बराबर ला के खड़ा कर सकता है, आपका झुका हुआ सर दोबारा उठा सकता है, आपकी इकॉनमी को दुरुस्त कर सकता है, आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपकी नस्लों को कॉन्फिडेंस दे। वो जमहूरी निज़ामी है। जमहूरियत से नफरत न करें। इस जमहूरियत को तबाह करने वालों से नफरत आपका हक है, ये आपका राइट है, और मगर इसके खिलाफ आपको काम करना होगा। वो फैज साहब के शेर पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं, विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं, इसके लिए काम करना पड़ता है। आज के लिए जाती जी, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।